Now we'll start. आप हमें बता दीजिएगा अमित जी जब शुरू करना है. सर हैज ऑलरेडी तो मैम ज्वाइन. शुरू करें। मैम शुरू अच्छा, करिए। कैन वी स्टार्ट? ओके ओके, थैंक यू. On behalf of Atmaram Sanatan Dharm College and the IQAC Atmaram Sanatan Dharm College, I Dr. Syed Mubin Zahra आप सबका खैर मकदम करते हैं, आप सबको वेलकम करते हैं आज J4 11th सेशन में. आज का जो दिन था वो बड़ा ही जिस प्रकार हर दिन मनमोहक रहा है, and we have kept on increasing our knowledge about the basic core topic of this refresher course, that is Indian folk traditions, a tapestry of diversity. मुझे लगता है उसकी टेपिस्ट्री में रोज एक एडिशन हो रहा है, रोज नए नए एडिशन हो रहे हैं. और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इस एवरीडे एडिशन से जो हमारे फोक ट्रेडिशंस है उसके बारे में उनकी जो नॉलेज है, और उनकी नॉलेज के साथ साथ उसके बारे में और एक जिज्ञासा जो बढ़ रही है कि अगला जो फोक ट्रेडिशंस के बारे में जो लेक्चर होगा वो किस फील्ड से होगा और किस दायरे को ऐड करेगा. तो उसी उसी थॉट को और उसी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं जो अब अगला हमारा जो लेक्चर है वो जिस उसका जो टॉपिक है वो है भारतीय लोक परंपराओं का संवैधानिक संरक्षण. अरिस्टो का एक बहुत फेमस कोट है अरिस्टोटल का कि एट हिज बेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस ही इज द वर्स्ट. तो किसी भी टू एनलार्ज एंड टू प्रिजर्व द फ्रीडम, जो डेमोक्रेसी का जो कोर होता है, उसके लिए there is necessity of law. And how lucky are we to have such a notable, such a respectable person here amongst us. आज जो हमारे बीच अगले वक्ता हैं, अगले स्पीकर हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, और हम लोग बहुत आभारी हैं कि आपने अपने हमारे हमारे इस सेशन के लिए अपना समय दिया. सो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सर, मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगी, और ये शेर आपकी नज्र है सर कि हयात लेके चलो. कुछ कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका काम सिर्फ उनका प्रोफेशन नहीं होता है, दे गो आउट ऑफ देयर प्रोफेशन. एंड कीपिंग दैट इन माइंड अबाउट माय नेक्स्ट गेस्ट, नेक्स्ट स्पीकर, ये शेर आपकी नज्र है सर कि हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो. तो सर, ladies and gentlemen, girls and boys, let me introduce you to Shri Chandrabhushan Pandey ji. Before I introduce and I give you a glimpse, and my friends, this is just a glimpse from his versatile academic, professional, and social life. Uh, Chandrabhushan Pandey ji has been a respectable former judge. He has been the legal advisor to the governor of UP, former additional advocate general Uttarakhand. Presently, he's also an eminent advocate, and he's not let rest. His passion is not at rest. He's still on the go, and he's practicing at Allahabad High Court, and he is a writer of many famous books. Of that, many have been controversial. The reason of the controversy is not because it's controversial, because he talks about the issues that nobody dares to talk. He is, I would say that he is the preserver, protector, and defender of the Constitution, as his profession goes. These are just an academic references. As I continue with describing his other credentials and other contributions, he's held the positions that Sir has held has been the judge that, as I already mentioned, he's been the legal advisor to the governor of UP.
Many distinct achievements are also to the credit of to his credits. He's been a member of two-man committee constituted by the UP governor to visit all the state universities and study its overall functioning. So what a wonderful speaker we have here amongst us with the academicians here who are participating in this refresher course. He was authorized by the UP government to check up work performances of various governmental departments. He has written many books, including Governor, Preserver, Protector, and Defender of the Constitution. Uh, Sir has also been part of a television series that had been 120 days episode, and it was called Janta Banam Neta. He has delivered lectures on different paradigms and different sides of his professional expertise. He's delivered lectures at administrative academies, judicial training and research institutes, universities. Uh, Sir has been Sir has been a regular writer in various prestigious national, international newspapers like Hindustan Times, Pioneer, Times of India, various international journals like International Journal of Rural Studies, published from London, Maya, Focus, Times, Village. These are very few that I'm mentioning, my friends. I'll just go through some topics that he has written articles on that just that struck me when I was going through his bio. कानून का राज, राज भवन से राष्ट्रपति भवन तक, महंगाई और मंत्रियों का वेतन. These are titles of few of his articles. पूर्वांचल का विकास और मंत्रीगण, चुनाव खर्च बढ़े नहीं घटे. So these are some amazing topics that he's written on. I think I can just go on and on. Sir has written some amazing books. I would like to just mention few of them, few of his books. Among them, the books that Sir has written is 40 साल, 4 कदम, 20वीं सदी के बाद, and I already mentioned Governor, Preserver, Protector, and Defender of the Constitution. Nikrisht Pradesh, 55 minute, and he has also been the former editor of Nyayik Samachar and Fit India Abhiyan. His bio is amazing, and I can just go on and on. I am so honored. I am so honored to welcome Shri Chandrabhushan Pandey ji, who would be talking on the topic that he would be enlightening us on would be भारतीय लोक परंपराओं का संवैधानिक संरक्षण. और सर, ये जो हमारा जो मंच है, ये जो रिफ्रेशर कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, ये अलग अलग फील्ड से हैं. ये केवल ह्यूमैनिटीज से नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष से जुड़े हैं हमसे ऑनलाइन के जरिए. इसमें कॉमर्स के भी लोग हैं, साइंस के भी लोग हैं, and I think we should have someone from law faculty also. And क्योंकि folk tradition जो है, ये माना जाता है कि folk tradition religious beliefs और customs of tradition को तो प्रोटेक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक कम्युनिटी कोहेशन को डेवलप करता है, और उसके साथ साथ वो हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है. तो सर, आपसे बेहतर इस बात को कौन हम तक कन्वे कर सकता है कि हाउ वी शुड हैव अ प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आवर फोक ट्रेडिशन. तो सर, और देर ना करते हुए और आपके और आप सुनने वालों के बीच ना आते हुए, आई इनवाइट यू to please come and enlighten us on the topic भारतीय लोक परंपराओं का संवैधानिक संरक्षण. Welcome, sir. सर, आपकी आवाज सर आपका माइक म्यूट है. जी सर. धन्यवाद जयरा जी. ये जो बहुत चीजें हमारे बारे में आपने बताया, तो ऐसा नहीं है कि मैं इनको किसी प्रयास से लिखता हूँ या करता हूँ. जैसे ही तो एक मेरे जैसे स्वभाव में आ चुका है, तो वो सब
करता रहता हूँ, और जब तक ये स्वभाव में, अभी तो अब जब तक रहेंगे तो स्वभाव में रहेगा ही, तो कुछ न कुछ होता है। जी सर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पहले तो मैं प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी को और प्रोफेसर बिनिता तुली जी को, और खास करके आपको भी, जो कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस कर रही है, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने ऐसे विषय पे मेरी चर्चा रखी है। और ये शायद मेरा पहला विषय होगा कि जिसमें ये जो लोक परंपरा है, लोक परंपरा के जो आयाम में मैंने चर्चा नहीं करूंगा, बाकी आप लोगों के तमाम विद्वानों ने, मैं देख रहा था, तमाम विद्वानों ने और तमाम अनुभवी लोगों ने जो लोक परंपराओं से जुड़े हुए, उनकी वार्तालाप हुई है। तो मैं इसमें जरा ऐसा लगता है जैसे मैं अनफिट जैसे हूँ कि भाई लोक परंपराओं के विभिन्न आयामों की चर्चा हो रही है, लेकिन मेरा किसी आयाम की चर्चा मैं तो नहीं करूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा महत्वपूर्ण है कि लोक परंपराओं को अगर हम संवैधानिक संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे, कोई भी परंपरा, वो धीरे धीरे, अगर उसको संवैधानिक या विधिक संरक्षण कहिए, संविधान तो एक मूल कानून है, उसके साथ बहुत सारे कानून होते हैं, तो अगर उनको विधिक संरक्षण नहीं मिलता है तो धीरे धीरे समाप्त। और ये प्रभाव होता है कि ये इसीलिए जब संविधान, हमारा देश में जो संविधान का जो निर्माण हो, तो भारत के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि बिना कि ये इतना बहुआयामी, हर क्षेत्र में बहुत, और भारत एक ऐसा देश है कि एक कहावत है भारत देश के बारे में। मैं विधि की चर्चा तो बाद में करूंगा, लेकिन जो विभिन्न आयाम हैं उसकी जो थोड़ी सी दो चर्चा मैं करूंगा कि एक बहुत ही मजेदार एक मुहावरा है कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। अब इसका मतलब आपको समझा दें कि कोस कोस पर, मतलब हर माइल पे, हर माइल पानी बदल जाता है कि जो वाटर का टेस्ट है और वाटर का नेचर है, वो हर कोस कोस पर बदल जाता है। हर कोस मतलब आफ्टर एवरी 2 माइल्स, जैसे कहिए कोस, और 4 कोस पर पानी, मतलब 4 माइल्स टू 8 माइल्स में अगर वो पानी बदल जाए, ये दर्शाता है कि विविधता। तो इसको केवल वो पानी और पानी से मत लीजिए, ये जो विविधता है, इस विविधता का मतलब ये है कि भारत में इतनी विविधताएं हैं, और वो विविधताएं आप देखिए कि एक चीज से नहीं, भाषा की विविधता, खान पान की विविधता, पोशाक की विविधता, उनके उत्सव की विविधता, त्योहारों की विविधता, विवाह शादी विवाह की विविधता, रस्मों रिवाज की विविधता, और साहित्य की विविधता, नृत्य की विविधता, संगीत की विविधता, रंजन की विविधता। अभी लौंडा नाच हो रहा था, एक विविधता का ही तो है, कितनी विविधताएं हैं, हर जगह आप देखें कितनी विविधताएं हैं। और सबसे बड़ी विविधता तो देखने को मिलता है, ये भारतीय देश ऐसा होगा जब विवाह के बाद बहू आती है तो मायके की परंपरा कुछ और ससुराल की परंपरा कुछ, और कहते हैं तो मायके की ये परंपरा है और ससुराल की ये परंपरा है, और तमाम बहुओं को तो दोनों परंपराओं को मिलान करने में ही पूरी जिंदगी सब जाती है कि कौन सी परंपरा का। तो ये एक विविधता का एकमात्र उदाहरण है कि कितनी हमारे यहाँ देश में कितनी विविधताएं हैं। अब इसकी विविधता का ये परिणाम हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो लोगों ने ये समझा कि जिस देश में हर कदम कदम पर हमारी विविधताएं हैं, तो इन विविधताओं में संविधान निर्माताओं ने इस चीज के बहुत ही गंभीरता से लिया, और उनके पास 2 विकल्प, ये सारी विविधताओं को खत्म कर देते संविधान में, और वो एक ऐसी व्यवस्था देते कि विविधता न रहे, बिल्कुल समरूपता, एक जैसा चीज होता है। जैसे कि बहुत सारे देशों ने ऐसा किया है कि तमाम चीजों को उन्होंने खत्म कर दिया, एक नया जीवन शैली और नए अधिकार और नया सब कुछ नया किया, ऐसा किया बहुत सारे, तो उस पर चर्चा नहीं करें। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं। वो भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ तो ये देखा गया कि कैसे हम इन तमाम विविधताओं का एक समावेश करें, और इन विविधताओं को समावेश करने के लिए उन्होंने
भारत के संविधान में एक विशेषता ये है कि ये संविधान एक ऐसा संविधान है जो कि केवल एक शासन व्यवस्था नहीं देता। ये दुनिया के तमाम संविधान आपने भी उसके बहुत अवसर मिला होगा देखने को, लेकिन वो बहुत सारे संविधान केवल शासन व्यवस्था देते हैं, एक ऐसे शासन चलाया जाए। भारत का ही संविधान एक ऐसा संविधान है जो शासन व्यवस्था के बारे में तो कहता ही कहता, उसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जो हमारे कार्य हैं उनको भी ध्यान देता है, और उसको भी उनमें भी किस तरह से एक समन्वय स्थापित किया जाए और उनके अधिकारों की कैसे रक्षा किया जाए, ये उसके बारे में बड़ा विस्तार से चर्चा किया है। और उसी तरह भारत के संविधान में समझ लीजिए कि सबसे बड़ा संविधान है, इसमें 395 अनुच्छेद है, अनेक अनुसूचियां हैं, अनेक संलग्नक हैं, वो परिशिष्ट हैं। इतना बड़ा संविधान कि आप पूरा एक कानून का एक ग्रंथ है, ये केवल वो किताब नहीं है बल्कि कानून का एक ग्रंथ है भारत। तो इसलिए कि क्योंकि हर पहलू को इसमें विचार किया गया, हर पहलू को इसमें शामिल किया गया है, हर प्रकार की गतिविधियों को इसमें शामिल किया। देखिए, आप आर्थिक गतिविधियों को बहुत हद तक परिभाषित किया जाता है, एक तरह से बहुत हद तक धार्मिक गतिविधियों को भी परिभाषित किया जाता है। हम नहीं कहते पूरा का पूरा परिभाषित किया जाता है, लेकिन बहुत हद तक किया जाता है। लेकिन सामाजिक परिस्थितियां एक ऐसी है, और राजनीतिक तो आप परिभाषित कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सामाजिक परिस्थिति ऐसी कि उसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। और उसीलिए कहा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि सामाजिक रूप से में ये इतनी प्रथाएं, इतने परंपराएं, इतने घर घर के अलग अलग परंपराएं, गांव गांव के अलग परंपराएं, एक महल्ले की परंपरा दूसरी है, दूसरे मोहल्ले की परंपरा दूसरी, और जीवन के सभी आयामों में ये परंपरा है, कोई एक आयाम में एक परंपरा नहीं है, बल्कि परंपराएं। और ये जो परंपराएं ही हमारी, ये एक तरह से भारत के संविधान के निर्माताओं का कि भाई इन परंपराओं को हम, परंपरा के नाम पर तो हम इसको नहीं शामिल कर सकते क्योंकि इतनी विभिन्नता है, लेकिन इनको एक संस्कृति के रूप में, जो भारतीय संस्कृति के रूप में, इसको हम अपने संविधान में शामिल, और इन्होंने संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग, जो हमारे मौलिक अधिकारों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, उसमें इसको शामिल किया गया है। देखिए कितना बड़ा महत्व। देखिए, संविधान में भाग 3 में हमारे संविधान, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, और उस मौलिक अधिकारों के करीब 5-6 भाग। एक तो जो सामान्य भाग है, मौलिक अधिकार है, लेकिन उनमें जो 5-6 हैं, मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि 2000, क्योंकि हर प्रकार के आपने बताया कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट के जानकार लोग हैं, सभी तो सारे लोग हैं, तो उनके थोड़ा सा उनको शायद लॉ के जो लोग हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन अन्य विषयों के जो लोग हैं उनको शायद वो परिचित न हो, तो इसलिए थोड़ा सा एक रेफरेंस में जरूर देना चाहूँगा कि जो मौलिक अधिकार हैं उसके कितने भाग हैं, और किस तरह से हमारा ये जो सांस्कृतिक भाग है इसको कैसे शामिल किया गया। अब जैसे पहला है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज जनरल कंडीशन है, एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 12 to 30। देखिए, संविधान में सेक्शंस को नहीं बोलते, संविधान में उसको आर्टिकल बोलते, तो शायद जो जनरल है वो दैट इज स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 12 to 30, टू आर्टिकल डील विद दिस। देन कम्स द राइट टू इक्वलिटी, very important. The right to equality is very, very important. That is under Article 14 to 18. All equality right, is the employment right, women's right, no discrimination on the basis of sex, caste, all that. So these provisions cover those rights. Third is a right to freedom. That is Article 19 to 21. Just make it 21 is very important, right to 19 is very important, freedom to speech, freedom to movement, freedom to profession, freedom to expression, all those rights are covered under these articles. That is right, Article 19 to 20 and 21 is very, very important, that's the personal liberty. कि किसी के खिलाफ किसी भी पर्सनल लिबर्टी इतनी बड़ी है भारत में कि किसी भी पर्सन को, नॉट सिटीजन,
that is right 21 is very very important. Not only citizen, बाकी तो citizen deal with the citizen. Citizen, if you are citizen of this country, then those rights you can avail those rights. But so far right personal liberty is concerned, it is available to all, whosoever is in this country, that is a person. That personal right cannot be taken away without due process of law. And then comes the right to against the exploitation. Exploitation means child labor, something like scheduled caste or the weaker section cannot exploit those rights. Right to against exploitation. And fifth is right to religion. And then comes very important, which I was going to deal with here, that is cultural and educational. Article 29 is that cultural and educational right. Here we are concerned with the cultural right. So this is, you see, why I am saying this is the constitutional maker included in the fundamental right the cultural right. जिसको कि आप हमारे लोग परंपराएं कर रहे हैं, ये तो कल्चरल राइट, इसको संविधान के फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर, ये बहुत बड़ी बात, वो इग्नोर कर देते. अब अगर ये आगे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में इग्नोर नहीं करते, मैं दो उदाहरण दूंगा तो क्या हालत होती इस देश में. अपने छोटे छोटे लोग जो अपने कल्चर को लेके हर तरह से आगे बढ़ते हैं, उसके लिए रोज सब अपनी किसी न किसी रूप में उत्सव करते हैं, गाना गाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तमाम नृत्य करते हैं, तमाम चीजें हैं उसमें शामिल किया हुआ है. अब वो कहाँ रहता है? अगर देखिए फंडामेंटल राइट का मतलब ये है कि दीज आर सच राइट विच कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट. अब दे आर दैट कैन बी टेकन अवे but for very limited purpose, and those conditions are laid down in the constitution itself. How and where you can take this right, take away this right. But moreover, those rights are the right goes with the citizens. And unless there is very compelling circumstances, very compelling on the ground of morality, on the ground of the law and order, those rights cannot be taken. This is very important. Therefore, I don't know what the 29 says. I'll just read. I would like to read those provisions. It's a small 3-line provision. 29. Any section of citizen residing in the territory of India, just territory of India or any part thereof, having distinct language, script, or culture of its own, important thing, culture of its own, shall have the right to conserve this. They have right to conserve it. Any section of citizen, very important. It's not the entire country unless follow the particular culture, they have right to conserve it. But any section of citizen, small village, you can consider tribes, very far away places where nobody can reach. They are 4 or 5 people are residing at the top of a hill. They say this is my cultural right. Nobody can interfere. And all these rights are the Sanskriti right. And then comes finally is the right to constitutional remedies, Article 32. That is very important. Therefore, if all these such rights are being abrogated by any instrumentality of state means government and its instrumentality. Instrumentality means their department, their different corporation, or there are so many societies and all that on behalf of the government which work. Government works directly, and most of the and somewhere they work indirectly. So some agencies and instrumentalities and all that. So even they cannot take them. So these are the constitutional protection right given to the citizens for having their folk tradition to conserve and preserve. These are very important. Now, this has been strengthened by the fundamental duties also.
And what is the fundamental duty say? Fundamental duty article. This is another chapter which has been included in the constitution, though it has been not initially in the constitution. Later on, it was introduced, and that is the Article 51A. Very important. And two provisions are. What is it? It shall be the duty of every citizen of India to respect the ideals of the Constitution, number one. There are so many, 6 or 7 class duties are there for citizens. And to value and preserve the rich heritage of our composite culture. See, the importance is the rich heritage of our composite culture. It means this is a country of rich heritage with composite culture. It's not one culture. It's a composite. So how beautiful our constitution has been, you can imagine. Entire, and that is the first, that is why the first word of our constitution is we the people of India. We the people of India means आप जो लोक परंपरा की बात कर रहे हैं वो यही तो है। वहाँ संविधान ने तो पहले ही शब्द में लोग को इतना महत्व दिया है कि वी द पीपुल ऑफ, हम भारत के लोग, चाहे आप उसको लोग कहिए या लोग कहिए, संविधान ने भारत के लोगों को महत्व दिया है, न कि भारत में किसी व्यक्ति को और किसी महत्वपूर्ण किसी ग्रुप को या किसी महत्वपूर्ण बहुत पावरफुल किसी इंस्टीट्यूशन को ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि, और ये भी मजेदार बात है कि हमारे यहाँ सॉवरेंटी वेस्ट करती है, पार्लियामेंट में नहीं वेस्ट करती, हमारे यहाँ सॉवरेंटी वेस्ट करती है इन दी पीपुल ऑफ इंडिया। तो पीपुल के तहत, तो इसलिए पीपुल के राइट पे अगर आप इंटरफियर करना नहीं करते, तो इस तरह लोक परंपराओं का महत्व देखिए कितना है। अब चूंकि ये लोग सब उतना समझ नहीं सकते हैं लोग, वो जो कर रहे हैं वो उनको संरक्षण मिला हुआ है। कोई समझता है कि हमारे तो आदिकाल से चले आ रहे हैं, हजारों साल से चले आ रहे हैं, तो इसीलिए हम करते आ रहे हैं। लेकिन वो तो जो कर रहे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। अगर सरकार भी चाहे तो उसको नहीं रोक सकती है, पार्लियामेंट भी चाहे तो उनके खिलाफ कानून नहीं बना। अब ये हमारे लोग परंपराओं की ताकत है। और उसके बाद विभिन्न आयाम है उसमें अपना, जब क्योंकि एक संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए जितना चाहें अपने उसका उन्नयन कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, उसका हर तरह से अपने लोक कलाओं को जिस स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं आप पहुंचाइए, और उसको किसी प्रकार के उस तरह से कोई उसमें बाधा नहीं पहुंचाती है। बहुत बड़ी चीज। इससे क्या होता है कि जब उसको संरक्षित होता है और पूरा उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता जब मिली रहती है, तो क्रिएटिविटी या सृजनात्मक शक्ति बढ़ जाती है। अब लोक कलाओं को अगर आप नहीं देंगे तो उनकी सृजनात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। तो सृजन की जो ताकत होती है लोक कलाओं में खास है। देखिए सिनेमा में क्या है, सिनेमा तो आपने कहानी किसी ने लिखा, मंचन किसी ने किया, डायरेक्शन किसी ने दिया, कुछ उसमें सच है, कुछ झूठ है, कुछ ये है, सब मिला के एक मनोरंजन बना। वो उसमें उतनी सृजनात्मकता नहीं है, कहीं कहीं सृजनात्मकता भी झलक जाएगी, लेकिन उसमें तमाम लोगों के दिमाग और बुद्धि लगती है और बन के एक सृजनात्मकता आती है, और इसीलिए एक सिनेमा बनती है तो फिर दूसरा सिनेमा वैसा सिनेमा पर बार बार दिखाई तो कोई देखने में नहीं जाता। लोक कलाओं की ये ताकत है कि उसको बार बार लोग देखते हैं, बार बार। अगर वो कहीं हनुमान को रामायण की रामलीला हो रही है तो हर साल होती है, उतनी ही हर साल भीड़ बढ़ती जाती है। उसी तरह जितने भी लोक कला है, जितने भी दिखाए, कितनी उसकी ताकत हो जाती है, क्योंकि उसमें इतना सृजनात्मक सृजन से वो निकला है। लगातार हजारों हजार लोगों ने उसको बनाया है, निर्मित किया है, देखा है। तो इसलिए इसमें संवैधानिक संरक्षण मिल जाने से उनको तो रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो उनमें और सृजनात्मक शक्ति आएगी और वो और सुदृढ़ होती हैं। ये हमारे भारत की ये ताकत है। तो ये एक पहलू इसका है। अब मैं 2 उदाहरणों से ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ये न था संविधान में ये सांस्कृतिक हमारा ये फंडामेंटल राइट, तो क्या होता, तो फिर कैसे हमारी इन लोक कलाओं का विनाश हो जाता। अब आप सभी को मालूम है कि जो जलाकुटी जो होती है तो बैलों में तमिलनाडु में
जनवरी में पोंगल का जो त्योहार होता है उसमें वो जी बैल सर जी। उसको, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कैसे देखिए, और अगर ये ना रहता ये अधिक तो आर्टिकल 29 नहीं रहता तो फिर उसका क्या हाल होता। तो अब ये जो है उसमें क्या होता है कि वो बैल का ये बस में करने का ये कला है, और वो जितने बैल को वो लोग मैदान में छोड़ देते हैं और उनके पकड़ के जो उनको बस में कर लेता है, वो बड़े सालों साल तक अपने बैलों की तरह हिंसक बनाते हैं, तो मतलब दौड़ने की वो जब छोड़ें तो फिर वो किसी को कब्जे में ना आवे। तो उसका नियम ये है कि अगर वो बैल को जिसने पकड़ लिया तो उसको पुरस्कार मिलेगा, अगर नहीं पकड़ा तो उसको पुरस्कार मिलेगा जो उसका मालिक होगा। तो इस कला को में ये होता है कि बहुत भारी होता है कि बैल इतने थोड़ा सा हिंसक हो जाते हैं, हिंसक तो मत कहिए, उनको तो सिखाया ही जाता है, तो वो इतने बेकाबू हो जाते हैं, हिंसक तो नहीं कहेंगे बेकाबू, और उसमें जो पकड़ने वाले कोशिश करते हैं उनको उठा के पटक देते हैं, वो गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। अब इस मामले को और बैलों के साथ भी क्रूरता होती है कि उनको जबरदस्ती आप पीछे दौड़ाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती। तो हमारे देश में 1960 में एक कानून बना कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल, और प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल के अंतर्गत इस जो हमारी लोक कला है या लोक तो आप खेल भी कहिए, लेकिन वो लोक कला का ही लोक का ही वो एक परंपरा का ही वो हजारों साल से चल रहा है, कोई लोक परंपरा का ही भाग। अब उस पे वो मामला सुप्रीम कोर्ट लोगों ने उस एक्ट के तहत वहाँ के जो एनिमल्स वेलफेयर बोर्ड के जो लोग थे वो बोर्ड बना हुआ है, वो लोग ऐसा भी तो बिल्कुल गलत है, इसको रोका जाए, और उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो फैसला दिया कि ये गलत है और इसको रोका जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में राज्य सरकारों ने उसको रोक दिया। अब राज्य सरकार ने जब उसको रोक दिया तो ये मामला फिर वो लोगों ने कहा कि तो हमारे संस्कृति का है, कुछ लोगों ने कहा कि तो हमारी धार्मिक परंपरा के दाल की धार्मिक परंपरा नहीं, ये तो हमारी सांस्कृतिक परंपरा का भाग है, तो हमारे सांस्कृतिक परंपरा का भाग है। अब उसी में ये अनुच्छेद 29 जिसको मैं आर्टिकल 29 हम कह रहे हैं, इसका जिक्र हुआ कि सर इसके तहत हमारा एक फंडामेंटल राइट है लोगों का, और इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता या कोई। तो ये मैटर फिर पहले तो जब उसके खिलाफ गया तो उन्होंने पहले 2 बेंच में सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट कहा ये तो मैटर इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर ये 5 जजेस की, और अभी मई में, इसी मई में 2023 में फैसला आया, और ये इस मामले में कि ये जो राइट ये है लोगों को, इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं, ये उन लोगों की एक परंपरा है, लोक परंपरा है, और लोग अब ये अगर इसको हम व्याख्या नहीं करते, परंपराओं को चला रहे हैं, और कोई भी, और उनको एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, और फंडामेंटल राइट है तो हम इसको हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस पर समझता है कि पार्लियामेंट की इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन या कुछ कमी इस पर कोई रेगुलेट किया जाता है, रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर उसको रेगुलेट करने का अगर वो समझते हैं कि इसको रेगुलेट किया जा सकता है, तो पार्लियामेंट में इस पर कानून बनाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो फिर चल रहा है और उसको रोक नहीं पाए। तो ये एक उदाहरण है। अब इसी से सारे लोक कलाओं, सारे लोक परंपराओं को आप इस फैसले के बाद, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, अब आप समझिए सबको एक तरह से पूरा का पूरा अधिकार मिल गया है अपने चलाएं, और अगर किसी तरह से उनको कोई रेगुलेट करना है, अब जैसे आप वृंदावन में होता है वो लठमार होली, अब कहीं किसी का सर फट गया, तो सर फट गया तो ये तो आप कहेंगे पर हमारे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। तो अब किसी का लट फट गया तो ह्यूमन राइट का वायलेशन के नाम पर उनकी परंपराओं को आप नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि वो भी उनका कल्चरल हेरिटेज है, वो भी उनके कल्चर का भाग है। तो इसीलिए उसको आप रेगुलेट करिए, उसको जैसे भी व्यवस्था करना हो उसको करिए, लेकिन आप रोक रहे। एक और उदाहरण, इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि देखिए ये जो महाराष्ट्र में वो दही हाड़ी वाला दही हाड़ी के जो खेल होता है कि जन्माष्टमी में गोविंदा गोविंदा, फेस्टिवल वो जी। गोविंदा लोग अपना चढ़ के और उसमें तोड़ते हैं, और ये भी एक उसकी परंपरा है। ये भी मैटर गया हाईकोर्ट,
और इसमें वहां के हाईकोर्ट ने कहा, महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने, कि कोई एक दुर्घटना घट गई थी बहुत ऊंचे, तो वो गिर गया, वो लड़का था, मौत हो गई, तो उसके बाद ही मामला जैसे होता है ना। इन परंपराओं में क्या होता है कि जब भी कुछ घटित हो जाता है तो फिर आवाज उठने लगती है, और आवाज उठती है तो लोग कहते हैं कि ये तो गलत है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जिन जिन लोगों को परंपराओं का ज्ञान नहीं है वो कहते हैं कि इसको बंद करो, ये तो बिल्कुल गलत है, और ये उस तरह से उनकी अपनी समझ है। लेकिन चूंकि अब तो ये संविधान निर्माताओं ने, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता देखी, वो जानते थे कि समय आ सकता है जबकि वो लोग, जो लोग परंपराओं को नहीं समझते हैं अच्छी तरह से, वो आवाज उठा सकते हैं। एक सेक्शन ऑफ पीपुल लोग कह सकते हैं इनको सबको रोको, एक जैसा सब कुछ कर दो, कंपोजिट कल्चर खत्म कर दो, कल्चर ही खत्म कर दो, बस एक शासन तंत्र रहेगा, वही देश को चलाएगा, और वो जो कहेगा शासन तंत्र, वही उसी हिसाब से पूरा समाज चलेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो वो संविधान के लोगों ने इस बात को समझा, इसीलिए वो इस बात को समझा समझा था, तभी इसको रख, ये भी स्थिति हो सकती है। और क्या कुछ समय की कमी हो तो हम उस हिसाब से रोक सकते हैं, समय है ना अभी? नहीं सर, नहीं सर, प्लीज आप है समय अभी, फिर हम प्रश्न लेंगे, आप अगर कुछ हाँ, तो और। इसको दो लाइन में खत्म, नहीं नहीं, प्लीज सर कंटिन्यू। हाँ, दो लाइन में। इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वो 20 फीट का ही, 20 फीट की ऊंचाई का ही वो बनाया जाएगा, तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, 20 फीट ही तक करेंगे। तो ये मैंने देखा कि एक, देखिए, संवैधानिक संरक्षण जो हमारा विषय है, कि आयाम तो नहीं भाई, लेकिन संवैधानिक संरक्षण मिल रहा है, इससे हमारी लोग परंपराएं खूब विकसित होंगी, और उनको आज इस सारे लोगों को समझना चाहिए कि अपने को विकसित करने में कोई बाधा नहीं है, अपनी परंपराओं को विकसित करिए और नए नए उसमें आयाम जोड़ते जाइए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसका भागीदार बने। ऐसा नहीं है कि उसमें जो पूरा बहुत ही कंजर्वेटिव तरीका है तो उसी को ही चलाइए, नहीं, इसमें थोड़े से नए नए आधुनिक युग के हिसाब से आयाम जोड़ते जोड़ते उसको विकसित करिए, अपना सृजनात्मक दिखाइए, और इस तरह से भारत का संविधान हर तरह से आपको संरक्षित और सुरक्षित। धन्यवाद सर, आपने अब हम लोग इसमें चर्चा, मुझे लगता है पार्टिसिपेंट से जैसे जैसे हम, आपने जो रोशनी डाली है उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्टिसिपेंट से हम सवालात लेंगे, और कई सवालात और कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो हम इस बात को, इस टॉपिक को, इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस डिस्कशन को। एक सवाल है डॉक्टर केशरी नंदन शर्मा जी का। वो कह रहे हैं, सर, marginal note of Article 29 relates to minorities. So my question is whether Article 29(1) deals with this context of marginal notes or not. What minorities means here? नहीं नहीं, उनका बिल्कुल ठीक है, उनका वो जो वो हेडिंग में उनको माइनॉरिटी दिखता है, लेकिन उसके ऊपर अगर देखेंगे तो वहां लिखा है कल्चरल और एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल, हेडिंग में नहीं है माइनॉरिटी। और जब प्रोविजन जब पढ़ेंगे तो उसमें भी सेक्शन लिखा है, माइनॉरिटी नहीं लिखा है। तो अब वो सिर्फ हेडिंग में लिख जाने से इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ये होता है, वो हेडिंग को महत्व नहीं दिया जाता है। जो प्रोविजन में जो वर्ड लिखे होते हैं उसको महत्व, और प्रोविजंस में कहीं नहीं, जैसे मैंने पढ़ा था आपको, उसमें सेक्शन ऑफ सिटीजन्स लिखा है, उसमें माइनॉरिटी कहीं नहीं लिखा, इसलिए माइनॉरिटी के लिख देने से वहां माइनॉरिटी नहीं पढ़ा। सर, एक चीज हमारे जहन में आ रही थी जब हम आपको सुन रहे थे, कि आपने एक बात बहुत अच्छी कही और बार बार इसको आपने अपने इस लेक्चर में रिपीट किया, और उसको आपने बहुत पॉइंट आउट किया। वो ये थी कि हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता। तो ये जो हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जिसमें हम फोक ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, उसमें इतनी विविधता है, तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, या एक थोड़ी सी परेशानी सी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अ, मैं इसको एक जेंडर कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछूंगी, कि जैसे अगर हम आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, सिविल राइट्स की, और यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम बात करें, लेकिन क्या ये एक बहुत हॉट टॉपिक है आजकल, हर हर इंसान सोच रहा है, वो चाहे वो
कानून का जानकार हो ना हो, लेकिन उसको ये लगता है कि मैं इस पे बोल सकता हूँ, मैं इस पे अपना मत रख सकता हूँ। तो मैं थोड़ा-सा इसको जेंडर पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ तक देखा गया, जैसे कई लोक परंपराएँ ऐसी हैं जो बहुत एंटी वुमेन है, अगर उसको आप फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से लिया जाए। जैसे आपने जल्लीकट्टू का बताया, जो एनिमल राइट्स के हिसाब से जो लोग थे वो कोर्ट चले गए, और उसका मैं तो इसको एक बहुत ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन लॉ सिस्टम मानूँगी कि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो उठाए जाते हैं और उसको लोग सुनते हैं ना, जस्टिस अटेंड्स सिस्टम ऑफ जस्टिस अटेंड्स टू दीज़ इश्यूज़। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे इसमें एक बैलेंस बनाया जाए, या कैसे इस चीज़ को, इतनी विविधता वाला जो हमारा देश है, क्या वो पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल सर? देखिए, ये बहुत अच्छा ये सवाल हर जगह उठ रहा है और लगातार उठ रहा है, उठना भी चाहिए। देखिए, इतना बड़ा देश है और इतनी विविधता है। देखिए, लेकिन फिर भी समझने की थोड़ी ज़रूरत ये है कि एक तो सिविल राइट, एक होता है कल्चरल राइट और एक होता है रिलीजियस। आपको कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि हमारे जो रिलीजियस राइट को, जो सिविल राइट है उसी को रिलीजियस राइट समझ लेते हैं, हमारे जी। सिविल राइट को कल्चरल राइट समझ लेते हैं। दोनों में फर्क है। अब जैसे देखिए, विवाह, ये करना, सवाल तो ये भी है कि क्या विवाह भी हमारा कोई रिलीजियस या कल्चरल राइट, रिलीजियस राइट है कि नहीं है, क्योंकि दुनिया में हुँ, बहुत हुँ। सारे देशों में, अब तो अफ्रीका में बहुत सारे ट्राइब हैं वो शादी करते ही हुँ, नहीं करते। तो ये शादी करते ही नहीं करते। और फिर आपने यही हिंदुस्तान में भी लिविंग लिविंग रिलेशन को मान्यता दी है, तो इसका मतलब हुँ, मैरिज को पहले डिफाइन तो करिए। मैरिज तो बात, बिल्कुल। यही तो सवाल उठ रहा है, बहस क्यों उठ रहा है कि मैरिज को क्या डिफाइन करें, कैसे मैरिज को डिफाइन करें, व्हाट इज मैरिज, मैरिज को क्या है। अब अब वो हमारी परंपरा है कि हमारा धर्म है कि क्या है। अब चूंकि हमारे या ट्रेडिशन है, तो अब ये सारे सवाल उठना चाहिए। और देखिए, इसीलिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो दिक्कतें आ रही हैं वो इसीलिए आ रही है ना। और फिर भी एक एक बात और भी किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू फॉलो कर रहे हैं वही सबको फॉलो करना पड़ेगा, या जो मुस्लिम फॉलो कर रहे हैं वही सबको फॉलो करना पड़ेगा, या जो बिल्कुल, क्रिश्चियन बिल्कुल। फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो। अरे, इसमें तो बहुत सारी चीजें जो मुस्लिम्स में है वो इसमें इंक्लूड होंगी। मुस्लिम में जो राइट टू, जो डाइवोर्स करने का जो प्रॉपर्टी। अधिकार है, हुँ, प्रॉपर्टी को छोड़िए, हुँ। प्रॉपर्टी तो अलग है। डाइवोर्स का जी। जितना आसानी से मुस्लिम परिवार में होता है, वैसा तो हिंदुओं में तो सिस्टम ही नहीं है, पहले तो था ही हुँ, नहीं। हुँ। तो हिंदू मैरिज एक्ट से आया, पहले तो हिंदू परंपरा में, पुरानी हिंदू व्यवस्था में जाइए तो मैरिज में तो कोई डाइवोर्स सिस्टम ही नहीं था। वो कहा हुँ, जाता है हुँ। कि एक बार बहू आ गई घर के अंदर, तो फिर उसकी लाश ही निकलेगी, मतलब चाहे वो किसी भी हालत में, इतना स्ट्रिंजेंट लॉ हुँ, था। तो ये तो हमारे यहाँ हम ये मैरिज का जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो चीजें आई, वो तो मुस्लिम लॉ और क्रिश्चियन लॉ से, क्रिश्चियन लॉ में मैं डाइवर्स बहुत आसान धर्म में है, और मुस्लिम में भी है, मुस्लिम में थोड़े बहुत जो है लेकिन आसान है। तो अब वो तो हमने ना, मुस्लिम आप कहिए तो मुस्लिमों से आया है ना। लेकिन हिंदुओं जैसे प्रॉपर्टी का, मुस्लिम में जो प्रॉपर्टी राइट है लड़कियों को बहुत कम देते हैं, और हुँ, हुँ। शेयर तो है लेकिन कम है। हिंदुओं में है क्या लड़का लड़की के बराबर मिलेगा। तो अब ये बहुत सारी चीजें जो यहाँ हमारी अच्छी हैं उसमें आएंगे। अब इस पर ये, इसीलिए बार बार इस पर ये हो रहा है कि इस पर एक कॉन्सेंसस बनाइए, लोग एजुकेट हों। अगर वो एजुकेट हो जाएंगे तो सब जान जाएंगे कि हमें एक्सेप्ट करना है। और ये बहुत जगह तो आप देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्मों से ज्यादा मुस्लिम और क्रिश्चियन या दूसरे जो जैन धर्म है उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना हिंदुओं को प्रॉब्लम हो। हिंदुओं को ये प्रॉब्लम होगी हुँ। कि गाँव गाँव में लोग अपनी बेटी को जमीन, अपनी खेत की जमीन नहीं देना चाहते। अब जब ये बिल्कुल नहीं देना चाहते, मैं और गाँव के, सर, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि अ, इस्लाम में भी है ये कि हक दिया जाता है, जैसे हक़-ए-महर होता है शादी के वक़्त, या ये कि लड़कियों को प्रॉपर्टी दी जाए। लेकिन अगर उसको हम उसकी प्रैक्टिकैलिटी और इम्प्लीमेंटेशन पे देखेंगे, आप तो सर इतने एक्सपीरियंस, आप जानते होंगे कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, उसमें भी रिलिजन ने इसका प्रोविज़न दिया है, फिर भी वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे वो पेट्रियार्कल जो थॉट है वो ज़्यादा हावी है हाँ, इन स्पाइट ऑफ द रिलिजियस प्रोविजन। तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं। और इसलिए लोग कह रहे हैं, ये तो बड़ा गलत होगा, ये हम लोग भाई लड़की को हम खेत में नहीं देंगे, हाँ अपने शहर हाँ। के पट्टी में, लेकिन खेत में देने में उनको ही लगता है कि बाहर का आदमी हमारे खेत में, उसका बाहरी दूसरे गांव का आदमी आके और दामाद बच जाएगा, उसका ससुर बैठ जाएगा, तो ये उनको लगता है कि हुँ। अपनी
जीवन में उनका हस्तक्षेप करना आवश्यक है। ये सब दिक्कतें हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये सब आएंगे। एक्चुअली इतना आसान मत समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा जब तक सारे लोग एक्सेप्ट नहीं। जी। बहुत इंटरेस्टिंगली आपने इसको समझाया सर। सर एक चीज बार बार, क्योंकि हम लोग सब एकेडमिक से रिलेटेड हैं, तो अभी मेरी चर्चा हो रही थी किसी से, तो हम इस पे बात कर रहे थे कि एक हमारे अमूमन हमारे जैसे, अगर मैं बच्चों को मोरालिटी, सेक्सुअलिटी या कुछ ऐसे कुछ फंडामेंटल्स पढ़ा रही हूँ जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या कुछ ऐसा है जो हम एक सोसाइटल नॉर्म्स पढ़ा रहे हैं, तो कभी-कभी हमें भाषा की दिक्कत आती है। आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि इन्होंने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जो व्हिच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन मतलब मैं एज़ एन एकेडमिशियन हम सब समझना चाहेंगे, मुझे उम्मीद है कि कई लोगों के ज़हन में सवाल होगा और मेरे ज़हन में भी है ये सवाल कि अक्सर हमें कुछ चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को कन्वे करने के लिए, समझाने के लिए कुछ ट्रेडिशंस में कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल सोशल उसका ज़माना है, सोशल फ़ेसबुक है, ये है, इंस्टा है और वीडियोज़ बन जाते हैं और फ़ौरन वायरल हो जाते हैं। तो कैसे मतलब हम अपनी एकेडमिक जो एक फ्रीडम है, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक टीचर के तौर पर या मैं एक एकेडमिशियन के तौर पर अपने स्टूडेंट्स को कुछ मुझे कन्वे करना है, तो कोई कल्चर ऐसा है जिसके लिए मैं आई माइट नॉट बी क्रिटिकल, आई माइट नॉट बी, मैं उसको क्रिटिकल थी मैं नहीं समझा रही हूँ, लेकिन उसको समझाने के लिए मुझे कुछ शब्दों का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे उसको कैसे जैसे डील कौन करें इन द जैसे प्रेज़ेंट कौन से शब्द, सिचुएशन? जैसे उदाहरण के लिए जी, जैसे सॉरी सर, कौन से आई डिडन्ट सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाई, मैं शायद सुन ऐसे नहीं पाई हूँ कौन से सर। शब्द जैसे इस्तेमाल करने हो तो दिक्कत होगी। सर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल ये दे सकती हूँ, जैसे कि अ अ जैसे अगर हम औरतों के बारे में कोई बात कर रहे हैं कि ये तो उल्टा है, अगर मुझे समझाना है, माफ़ी चाहूँगी, उल्टा है, तो अब कोई उठ के ये कह दे कि भई ये तो शब्द तुमने कैसे यूज़ कर लिया उल्टा। मेरा जो एम है कि मैं तो एक समझाने के हेतु या कुछ, और ऐसे कई शब्द हैं जो जिसको एक कंट्रोवर्सी, द सो कॉल्ड कंट्रोवर्सी बना दिया जाता है। लेकिन एज़ एन जैसे एकेडमिशियन, एज़ अ टीचर, तो इसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं? आज की जो जनरेशन है, यंग यूथ जनरेशन भी जो है, उनके लिए भी जैसे आपने बहुत अच्छा अभी एग्ज़ाम्पल दिया कि शादी क्या है? तो अगर हम आज अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ बैठते हैं, हमारे लिए तो शादी है कि भई हमारे माँ-बाप ने शादी कर दी, हमने एक अच्छा-सा घर बसाया, अच्छी पत्नी बन गए। लेकिन अब आज की जो लड़कियों से, बच्चियों से हम बात करते हैं और पूछते हैं शादी क्या है? तो वो ये उनकी मेरा स्पेस ये होना चाहिए, मेरे पास ये, तो वो उस तरह की जब कंट्रोवर्सीज़ आती है या अंडरस्टैंडिंग में, तो वो हम कैसे एज़ एन एकेडमिशियन लीगल लैंग्वेज में उनको कैसे समझाएँ? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जस्टिस और लॉ जो होता है वो आपको स्ट्रेंथन करता है, एम्पावर करता है किसी भी इश्यू को, जैसा कि आपने पूरा अभी हम लोगों को समझाया कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़, तो वो कैसे एज़ एकेडमिशियंस वी शुड यूज़ इट? देखिए एक बात जान लीजिए कि संविधान में तो प्रोविजंस है ही है। संविधान कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आदर्श है, जो उसके आइडियलिज्म है मॉरलिटी का, जैसे वो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियलिज्म को भी आपको फॉलो करना। एज जी, ए सिटीजन आपकी ड्यूटी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियलिज्म जो है उसको फॉलो। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियलिज्म को आप रख के सामने कोई बात कहेंगे तो शब्दों का तो महत्व घट जाता है ना। फिर वो शब्द क्या कोई कह रहा है उसकी वैल्यू तो खत्म हो गई। आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियलिज्म को वो रख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि प्रोस्टिट्यूट्स का है, जो वो जो एक्सप्लॉयटेशन का भी चैप्टर फंडामेंटल राइट में है कि आप किसी को जी। एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, तो अगर हम उसको मान लीजिए वर्ड का इस्तेमाल कर दें, जैसे हमने मान लीजिए बहुत लोग प्रोस्टिट्यूट को रंडी कर दे, अब हाँ, आप किसी जी। को ये वर्ड इस्तेमाल कर दीजिए आज के युग में, पहले ये बड़ा कॉमन था और हम लोगों के बचपन में शादियों में यही शब्द कह के बुलाते थे लोग। लेकिन आज हुँ, ये शब्द अगर कोई सुन ले तो उसको तो ऐसे लगेगा कि ये क्या ऐसे शब्द, ये तो बड़ा ये विजिब टाइप का शब्द कह रहे हैं। लेकिन एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, तो आप तो उसको अगर अपने भाषा में बताना है तो उसको तो वो वही भाषा में बताना। तो उसमें आप उस जो एक्सप्लॉयटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आदर्श है, जो आप उसको बारे में एक्सप्लेन करें कि
आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडिज्म में हमें जहाँ ह्यूमन रिस्पेक्ट देना है, उनको भी राइट उतना ही है। जेल में कैदियों को भी उतने ही फंडामेंटल राइट्स है, जो कि समाज में जिसको कि हमारा वीकर सेक्शन कहते हैं, जिनको कि समाज पूरी नजर देखता है। और अब तो थर्ड जेंडर और ये सब सभी को सारे राइट है। प्रोस्टिट्यूट को तो बात छोड़िए, उनको तो हमारे जो जैसे राइट है उनके साथ राइट। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक भाई आपको बात कहूँ, जब संविधान बना तो फाइनली संविधान जब बन गया तो ये हुआ कि अब इसको कंक्लूडिंग एड्रेस करना था उनको, राजेंद्र प्रसाद जी, क्योंकि वही संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ही हुआ प्रेसिडेंट, एंड ही हैड टू कंक्लूड कि हमारा संविधान कैसा। तो उन्होंने कहा कि संविधान हमारा बहुत अच्छा, लेकिन इसमें जो दो बातें इसमें। पहली बात तो यह है इस संविधान में कि इसमें कोई मॉरलिटी के बारे में कहीं जिक्र नहीं है कि भारत के जो नागरिक हों उनका वैल्यू सिस्टम क्या हो, मॉरल वैल्यू क्या हो। इसमें बनाने में तो हम लोगों ने संविधान नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि इसमें आने वाले लोग जो एमएलए एमपी बनेंगे या सर आपका ऑडियो हो गया है। सर आपका ऑडियो ऑफ हो गया है। हाँ जी जी। हाँ, तो उन्होंने कहा तो संविधान तो फिर हाँ वो हाँ आप ये तो संविधान को ऐसे की तैसे कर देंगे, मनमानी ढंग से चलाएंगे, तो इस पर इसका भी कोई इसमें जिक्र। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम आने वाले हजारों साल तक के लिए हम संविधान बनाए, आने वाली हर पीढ़ियां इसको अपने ढंग से ये दोनों इश्यूज को टेकअप करेंगी और उसको रिजॉल्व करेंगी कि कैसे। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोगों ने तो अब 75 साल तो मैंने लिख दिया किताब, 75 साल बदलते बदलते कहानी, और दिखा दिया कि 75 साल में देश कहाँ कहाँ पहुंचा। अब आपकी पीढ़ी का काम है कि आगे भारत 75 साल के भारत देश को कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, कैसे रिलीजियस डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, कैसे कास्ट का डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, कैसे करप्शन के इश्यू को सॉल्व करना है, कैसे मॉरल वैल्यू इंट्रोड्यूस करना है, कैसे हर जनरेशन को इंस्टीट्यूशनल नॉलेज देना है कि हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका कैसे सेफगार्ड करना है, कैसे कंपोजिट कल्चर रखना है, कैसे होमोजेनिटी रखना है, कैसे यूनिफॉर्मिटी रखना है। कन्फ्लिक्ट होंगे, चलते रहेंगे, और उसको रिजॉल्व करने के लिए आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है। और जो लड़के अभी पढ़ रहे हैं उनको आप जिनको आप तैयार कर रही हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि कैसे इन चीजों को लेके जैसे 75 साल हम लोगों ने कहा संविधान को सक्सेसफुल बनाया, आने वाले 75 साल में आप लोग उसको सक्सेसफुल बनाइए। कितनी सुंदरता से और आसानी से आपने इस बात को हम तक पहुंचाया है सर। वाकई जो आप लोग ने जो मशाल जलाई है और आप लोग ने जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने की, मुझे लगता है कि ये हम लोगों को भी इसका जिम्मेदारी का एहसास हुआ है जो आपने ये कहा है इस वक्त हमसे। और मुझे यकीन है कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपकी इस बात को गांठ बांध लेंगे। और अमूमन तो हम टीचर्स का काम ही है कि हम अपने जो हमारे जो राइट्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनको बचाना। सर आप इसी में आगे बढ़ते हुए मैं कुछ प्रश्न हमारे जो सहभागी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, डॉक्टर संजय वाघमारे जी हैं, इनका प्रश्न है, ये पूछ रहे हैं कि लोक परंपरा मजबूती के लिए संविधान में कौन से प्रावधान हैं। ये महाराष्ट्र से हैं डॉक्टर संजय वाघमारे जी। इनका ये प्रश्न है कि हमारे लोक परंपरा मजबूती के लिए हमारे संविधान में कौन से प्रावधान है। मुझे लगता है सर आपने इस पे अच्छे से कुछ मतलब रोशनी डाली है, पर फिर भी इनके प्रश्न को अगर ले तो अगर आप इसमें कुछ और ऐड कर सके सर। ठीक है, ये जो आर्टिकल 29 में तो हमने जैसे कहा ही है, और उसके साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज है 51 का मैंने एक बताया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो केवल सिटीजन्स के लिए नहीं है, सिटीजन्स के लिए तो है ही है, लेकिन जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको, और जो भी फंडामेंटल राइट्स, इसको सेफगार्ड करने का काम स्टेट का है, गवर्नमेंट का। अगर मुझे फंडामेंटल ड्यूटी राइट मिला है तो वो राइट बेमतलब का तो है नहीं, आखिर में कोई ना उसको एप्लीकेबल अप्लाई करेगा ना। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी सेफगार्ड करने की और उसको इम्प्लीमेंट कराने की स्टेट की ड्यूटी है। इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट बनाया गया कि ये तो आपको करना है, उससे बड़ा फंडामेंटल राइट। तो इसलिए इसको आपको स्टेट की ड्यूटी है कि इनको हमको इन्फोर्स करा। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज में उनकी तो ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है, हमारे नागरिक ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है कि हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट।
तो किसी का ये कल्चरल हेरिटेज अगर हमारा प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है तो स्टेट के पास जाकर आपको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और नहीं करते हैं तो ही विल बी, वो स्टेट के आप वहां तो नहीं, मतलब मैंने बताया कि आर्टिकल 29 हमारा, वो 32 रेमेडियल तो गारंटी करता है, वर्ल्ड का गारंटीड, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड, वर्ल्ड गारंटीड यूज किया। तो वो जाइए कोर्ट में, जाइए कोर्ट ऑफ डायरेक्शन इशू करिए क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, वाई और नॉट परफॉर्मिंग फंडामेंटल, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट। I think so. That's such a wonderfully conveyed answer to such a difficult question, and I think that comes only from a person like you who has so much experience as a legal person dealing with that legal perspective. आपने बहुत आसानी से उसको समझा दिया. सर, कुछ comments है, मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए. कुछ हमारे participants के comment है before taking the next question. जैसे जी सर, तारा जी हैं, ये कह रही हैं, थैंक यू सर फॉर अ वेरी एनरिचिंग सेशन. देन वी हैव संजय वाघमारे जी, वो आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपने उनके प्रश्न का जवाब दिया है. ही इज कन्वेइंग हिज थैंक्स टू यू. ये डॉक्टर केशरी नंदन शर्मा है. हाँ, इनका सवाल है सर, ये पूछ रहे हैं कि ये इनका सवाल है कि वेदर फंडामेंटल ड्यूटी कैन बी एनफोर्स्ड. It can't be enforced like under Article 32. But if the state is not doing something, as a citizen, I cannot go against another citizen. Why you are not following your fundamental duties? That I can't do. But if a state is not following the fundamental duties, then definitely that can be enforced. Because state has a duty. They are not following the duty. The fundamental duty is attached to the state government. And if they are not done, every time there is a writ of amendment, amendments can be issued. You are not discharging your duty, and direction can be issued by the. वंडरफुल सर, हाउ नाइसली कन्वेड. सर, ये एक और है सर हमारे पार्टिसिपेंट, निवृत्ति लोखंडे. इनका सवाल है कि लोक परंपराओं की वर्तमान समय में दशा एवं दिशा को संविधान में कितना संरक्षण दिया गया है. तो जैसा मैंने बताया तो पूरा का पूरा संरक्षण किया, और दो 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 इलस्ट्रेशन जो मैंने दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकी. हमारे दूधाड़ी भी चल रहा है, और वो जलाकुट्टी भी चल रहा है. कोर्ट के चाहने पर, गवर्नमेंट के चाहने में भी नहीं रुक पाया. देखिए कितनी बड़ी समस्या क्या होती. सर, अनीता सिंह जी हैं, ये कह रही हैं वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. सुमित कुमार बंसल जी हैं, ये कह रहे हैं वेरी यूजफुल सेशन. डॉक्टर दीपक प्रसाद जी कह रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव. सर, एक चीज हम पूछना चाह रहे थे कि हम तो सब पढ़ा लिखा मजमा है हम लोग. जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, हम देश के भविष्य को बनाते हैं. क्योंकि आप यहाँ है, और मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगी सर, और मैं बड़ी बेबाकी से आपसे पूछना चाहूंगी कि एज अ लीगल एक्सपर्टीज, आप कोई ऐसी चीज मतलब, या कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा फील्ड जो आप चाहेंगे कि हमारे एकेडमिशियंस को उससे फुल्ली अब्रिज्ड होना चाहिए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सर. हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि लड़कियां जब शादी करें तो एक किताब होती थी बहश्ती जेवर, वो पढ़ा जाए, उसमें एक आइडियल वाइफ बनने के सारे नुस्खे बताए जाते थे. तो दो आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट स्कूल ऑफ थॉट, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एज टीचर्स एंड एज एन एजुकेटर, हाउ शुड वी एनरिच आवर नॉलेज ऑफ लॉ इन जनरल टर्म्स. कोई ऐसी चीज है, क्योंकि मैं नहीं मानती हूँ कि हम सबने कॉन्स्टिट्यूशन तो हम जानते हैं, हम अपने राइट्स जानते हैं, ड्यूटीज जानते हैं, लेकिन हाउ इज देयर समथिंग दैट वी कैन ऐड to our academic credentials in matters of law and sir, justice and law, so that it will help us in our profession. ये जैसे आप लोग बहस करा लोक परंपराओं के आयाम जी, तो कितने आयामों का, लोक परंपराओं के आयाम की आप चर्चा करा दें. कितने आयाम है, सारे आयाम को इतने एक्सपर्ट्स को आपने बुलाया, आप उस सारे आयाम को एक एक एक्सपर्ट बता रहे हैं. इसी तरह से कानून के भी इतने आयाम हैं कि एक किताब से तो कुछ हो नहीं सकता. लेकिन फिर भी देखिए, कुछ जो प्रिंसिपल समझने की जरूरत यह है कि सबसे बड़ा प्रिंसिपल यह है कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन पर मैं
कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज है हमारे। हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू क्या है, कि जैसे एक हमारा कि जैसे 2-3 वैल्यू, पहले हम लोग जेंडर इक्वलिटी कहते हैं। जेंडर इक्वलिटी का कोई तो कंसेप्ट था ही नहीं पहले, चाहे किसी भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो। वो कहने को सब कहते हैं कि हिंदुओं में कि अर्धांगिनी है, मुसलमानों में कहते हैं कि इक्वलिटी है, परंपराएं हैं, लेकिन कोई जेंडर इक्वलिटी बिहेवियर में नहीं। लेकिन ये संविधान ने उसको एक तरह से एक राइट के रूप में दे दिया है, जेंडर इक्वलिटी, आप स्त्री पुरुष को समान भाव से दे। तो अब ये वैल्यू तो कम से कम सीखना चाहिए कि हमें इस वैल्यू को करना चाहिए। उसी तरह से है कि अनटचेबिलिटी खत्म हो गई, फिर भी कुछ सोसाइटी के कुछ सेक्शन में अनटचेबिलिटी है। उसी तरह से लेबर बच्चों के साथ, उनके साथ जबरदस्ती, छोटे छोटे बच्चों के साथ अब बच्चों का काम कराना, 2-2 साल 4-4 साल बच्चे, 8-8 साल 9 साल के बच्चों से काम, ये तो कुछ तो वैल्यूज हम जब सोसाइटी के तो वैल्यू जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे मॉरल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू और या फंडामेंटल ड्यूटीज ही है, बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज की है। हम जब फंडामेंटल ड्यूटीज में जो वैल्यू दिए हैं उसमें कुछ तो हम प्रैक्टिस करें। हम धर्म को बिल्कुल माने ना माने, सोशल ऑर्डर को माने ना माने, बिल्कुल हमें अपने मोहल्ले की बात को माने ना माने, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है एज ए सिटीजन, क्योंकि देखिए क्यों, क्योंकि आप जब डिमांड करते हैं राइट, गांधी जी तो बिल्कुल कहते थे कि उस राइट का कोई मतलब ही नहीं है जिसमें की ड्यूटी नहीं हुई। गांधी जी बहुत क्लियर थे, कोई उनको कंफ्यूजन नहीं कि पहले ड्यूटी तभी है जब आपका कोई, वो राइट तभी है जब आपकी ड्यूटी है। अब आप बताइए, कभी आपने कहीं सुना है कि कोई पहले ड्यूटी की बात करता है, कोई राइट? अभी कॉलेज में अगर वो जहाँ आप टीच कर रही हैं वहां अगर ड्यूटीज की बात करिए तो कहा नहीं साहब, मुझे तो मेरा अधिकार है, मैं तो अधिकार की बात, ड्यूटी जानते हैं। तो कम से कम बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो मेरा सैक्रोसेंट ड्यूटी है, जबकि जो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा राइट, इतने बड़े राइट इसको मिले, ये कोई कोई मामूली नहीं है कि भारत में, हर देशों में, दुनिया के तमाम देश हैं और बहुत बड़े बड़े देश हैं जो हमें जो फंडामेंटल राइट्स हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे राइट अमेरिका में भी नहीं। आपको मजे की बात, अब जो समझ सबसे लिबरल सोसाइटी है, सबसे डेमोक्रेटिक जी सोसाइटी है, वहां भी नहीं है। तो अगर कभी वो तो उसके कम से ऐसे तमाम 10 खामियां हैं जो कि वो गिनाई जा सकती है, जो उनके पास, जो वो झेल रहे हैं, जो कि हमारे पास हैं। इतने फंडामेंटल, तो इतने जहां आपको अधिकार मिले हैं, तो थोड़े से ड्यूटीज को भी तो फॉलो करिए। तो ये इसको ही पढ़ लीजिए तो मैं समझता हूँ कि जीवन सार्थक हो वंडरफुल। जाए। नहीं सर, इतनी खूबसूरती से आपने ये समझाया कि, और मुझे लगता है कि मैं इसी को जानना चाह रही थी, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि जैसे मैंने आपका व्यक्तित्व देखा, जब मैं आपका बायो देख रही थी, तो मैंने देखा कि आपके प्रोफेशनल कमिटमेंट के साथ-साथ आपने इतनी समाज सेवा की है। और मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को ये बात अब शेयर करना चाहती हूँ, शायद मेरे मिस हो गई, कि आज भी अगर आप कोई टीवी चैनल ओपन करते हैं, तो वहाँ पे कोई अगर सौम्यता और समझदारी और फैक्ट्स की बात करता हुआ कोई एक्सपर्ट नज़र आता है, तो वो चंद्रभूषण पांडे जी हैं, क्योंकि मैंने आपके कई कई स प्रोग्राम्स और सेशन ऐसे देखे हैं, जहाँ बहुत ही खतरनाक से खतरनाक मुद्दे होते हैं, जहाँ कई को-पैनलिस्ट जो हैं वो चिल्ला रहे होते हैं पूरी ऊँची आवाज़ में, लेकिन सर बहुत ही सौम्यता से, बहुत ही आराम से, बहुत सहजता से पॉइंट वाइज लीगली और बहुत ही अच्छे से उस बात को कन्वे करते हैं। सर, एक चीज़ मैं जानना चाह रही थी कि एक सवाल है एक पार्टिसिपेंट्स का, मैं वो पढ़ लूँ सर। वर्तमान में बहुत सारा ये हाँ, ये सवाल है निवृत्ति लोखंडे जी का। अ, ये कहना चाह रहे हैं, इनका प्रश्न है, वर्तमान में बहुत सारा लोक कलाकारों को संविधान में संरक्षण मिलने बावजूद भी कई बार देखा जाता है कि लोक कलाकारों को उतना सम्मान नहीं मिलता। ऐसा क्यों? निवृत्ति लोखंडे जी हैं महाराष्ट्र से। और मैं हाँ, तो एक ठीक और है, ये तो देखिए, ये तो फिर वही तो बिल्कुल पॉलिटिकल इशू हो गया ना। अब उनके हाँ, जिन बिल्कुल, चुना है, वो नहीं, वो ऐसे लोगों को मंत्री बनाया है जो भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, वो अपने स्वार्थ में है, जिनकी ड्यूटी, बिल्कुल, जिनको समाज के काम करना है, तो ये तो एक बिल्कुल पॉलिटिकल बात हो गई। यही हो रहा है देश बिल्कुल। में। और जी, जी, हम बिल्कुल। लोग तो इसके संदर्भ में एक बात बताऊंगा कि आपको, कि हम लोग एक मूवमेंट चलाते हैं, गांव की सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन है अलग से, गांव को, एक गांव को उन्होंने बना रखा है, दे रखा है गांव पंचायतों को, जैसे गांव सरकार के अधिकार दे रखे, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह हुँ, से हुँ। उनकी है, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वही अधिकार गांव पंचायतों को दे रखा है।
उनको भी एक अलग से शेड्यूल दे रखा है जिसमें 29 विभाग दे रखे हैं। उनका भी एक लोकसभा टाइप का उनका गांव सभा है। उनका एक मंत्रिमंडल है, वो इलेक्टेड मंत्रिमंडल होता है गांव पंचायत का। चीफ मिनिस्टर की तरफ से ग्राम प्रधान होता है, इलेक्टेड मंत्रिमंडल होता है। और उनके लिए फाइनेंस कमीशन अलग बना रखा है संविधान ने। उनके लिए संविधान ने अलग से पैसे की व्यवस्था करने के लिए फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन बना रखा। अब इसके बावजूद भी ये सारे के सारे अधिकार सरकारों ने क्या रखा है कि इसको हड़प रखा। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी गांव वाले करेंगे उसके लिए राज्य सरकार जब आदेश करेगी तभी वो करेंगे। अब बताइए, अभी संवैधानिक व्यवस्था गांव सरकार की जो कि 72वें संशोधन से आया, 92 में लागू हुआ, 92 से आज तक गांव के पंचायतों को ये 29 विभागों का अधिकार नहीं दे पाए। छोटी सी बात है कि वहां जो है महिलाओं के संरक्षण की जो बात है, तो उदाहरण दे रहा हूं, महिलाओं के लिए अलग से दे रखा है कि गांव के लोग महिलाओं का संरक्षण। अब बताइए, महिलाओं को सबसे ज्यादा महिलाएं उपेक्षित गांव में होती हैं। अगर उनके पास अधिकार रहता तो उनको फिर वो क्यों आती हैं इनके डीएम और एसपी के और कलेक्टर के पास थाने पर। आज उनको ये भी कहा अभी अभी ये है कि डिस्प्यूट अराइज हुआ या परिधार होगा देवरिया में भारी वो जमीन के विवाद को लेकर। उस पर मैंने दिन आपने जगह टीवी की चर्चा करी। टीवी में मैंने कहा कि सबसे बड़े तो उत्तर प्रदेश सरकार की, और मैंने बल्कि ये बात खुल के कही कि उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। हमने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दोनों दूरदर्शी नहीं, क्योंकि 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून भेजा कि आप गांव को आप 2 अधिकार दे दीजिए, उनकी सुरक्षा का अधिकार उनके हाथों दे दीजिए और न्याय व्यवस्था उनको दे दीजिए। अगर ये दोनों 2009 से आज तक दे दिए होते तो गांव में न्याय व्यवस्था अगर रहती तो छोटे मोटे जमीन वगैरह के झगड़े होते ही नहीं। उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था रहती तो जो भी थोड़ी बहुत बदमाशी होती, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारे चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर है, पहले इनको भी अंदर दूरदर्शी है। जी जी। तो अच्छा सर नहीं नहीं, वो वही आपकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने कही कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो वो मोरालिटी वाला जो जो एक क्या बोलते हैं क्रेडेंशियल मानिए या ट्रेट मानिए, वो तो हर चीज में अगर अटैच हो जाएगा तो आई थिंक वील स्टार्ट लिविंग इन एन आइडियल सोसाइटी। एक चीज जो आप कह रहे थे सर, उसी में मैं थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगी। तो ये बहुत आपकी जो ये बात है, इसको एक हमारे, मैं उसको पहले मेंशन कर दूं, एक हमारे पार्टिसिपेंट्स है केशरी नंदन शर्मा जी है, उन्होंने लिखा है 73rd अमेंडमेंट जो आपने जिक्र किया उसको उन्होंने लिखा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ सर, क्योंकि जैसे मुस्लिम्स में होता है कि मेहर होती है, मैरिज सिक्योरिटी का मनी होता है, प्री नप्चुअल होता है देखा जाए तो, कि निकाहनामा जो होता है उसमें आप उसमें शर्तें डाल सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। लेकिन जब लड़की की शादी होती है तो उससे सबसे पहले ये कहा जाता है कि बेटी आप पहली रात में जो है अपने शौहर से मेहर माफ कराए लो, तुम अपना मेहर माफ करवा लेना। क्यों माफ करवा लेना? दैट्स द सिक्योरिटी मनी दैट अ वुमन इज एंटाइटल्ड टू गेट थ्रू हर रिलीजियस सैंक्शन। तो तो इस चीज को कैसे बदला जाए? मैं छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि लॉ ही जो है इन सब चीजों को जो है आगे बढ़ा सकता है या एम्पावर कर सकता है। तो सर मेरा ये सवाल है कि जो अवेयरनेस है लॉ की, वो कैसे बढ़ाई जाए कि ये लॉ, क्योंकि जैसे जैसे ये जो अगर मान लें हमारी बात लोग ना, जिसको गांव सरकार वाली बात है, अगर गांव की अदालतें शुरू हो जाएं, देखिए लॉ क्या है, गांव में कोई लॉ की लीगल एक्टिविटी तो होती नहीं, कोई जी। अधिकारों के बारे में वहां कोई चर्चा होती नहीं। गांव हम्म के लोग खेती बाड़ी समझते हैं कि सिर्फ जानते हैं लोग खेती बाड़ी, समस्याओं का रिजोल्यूशन और का समस्याओं का पास तो उनके पास कोई काम उनसे लेते नहीं। जब उनको हम्म आप दे देंगे कि भाई आप खुद ही फैसला आप अपना करिए, तो लॉ खुद ही जानने लगेंगे। क्योंकि जैसे मेहर जैसे आप किसी लड़की ने उसके कहते हैं पहले रात को माफ करा दे, जी। ये माफ कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में जो 2 गवाह होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया तो गवाहों के हम्म मसले, उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में हेर फेर तो हो नहीं सकता। क्योंकि जब हम्म हेर फेर होगा तो वो दोनों गवाह भी रहे, फिर उसमें संशोधन लिखा जाए और फिर उसी तरह की हम्म सहमति बने, तब तो उसमें हेर फेर होगा, अन्यथा वो हेर फेर हम्म होगा नहीं, कहने से तो हेर फेर हम्म हो नहीं जाएगा। अब वो हम्म गांव की अदालत थी, तो जैसे ही ये कहते तो गांव की अदालत में वो महिला सीधे गांव की अदालत में जाती है और कहती साहब ये ऐसा गलत काम हमसे कह रहा है कि मेहर कराना, या इसको तो मेहर तुरंत सामने पेश आएगा। आज उसका दरखास्त देती है, दूसरे दिन उसको मेहर का पैसा मिल जाता, और नहीं तो उनके खिलाफ वो जो अपनी सिक्योरिटी है FIR दर्ज होता है, जेल जाते
और अपने नाम नहीं लेते थे, माफ करके, तो चीटिंग में आ जाता, वो चीटिंग का जी। मुकदमा दर्ज। और अभी क्या है भाई, महिला जानती ही नहीं कि जाए कहाँ, कोर्ट कचहरी जाए, हाँ। कहाँ खत्म। हम्म। वही एम्पावर हो जाएगा जब गाँव को पावर दे देंगे, वहां जब ये सिस्टम को दे देंगे, आप लीगल सिस्टम वहां दे देंगे, तो वो धीरे धीरे सब कानून एम्पावर हो जाएंगे। आखिर में हम लोग माल के बारे में जानते थे क्या, तो माल जाने लगे तो माल के बारे में जान, इसी तरह से जहां भी जब सिस्टम चलने लगता है उसके बारे में जाए, इसी तरह सिस्टम चलता है। सर मुझे लगता है कि आज का जो ये सेशन था, और मैं ये मानती हूँ कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, और इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि हम सब सोचने वाले जहन हैं, और हम सब जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और अब मुझे लगता है कि एक ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स देने से पहले मैं कुछ दो तीन बल्कि सर अभी भी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे मैं बस एक ये लास्ट आपको पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद आई जस्ट गो अहेड विथ माय ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स। ये केशरी नंदन शर्मा जी, इन्होंने लिखा है कि न्याय पंचायत को ऐसा अधिकार देकर मजबूत किया जा सकता है। आई थिंक दे ऑल अग्री विथ व्हाट यू हैव सेड, so so I think message conveyed well and taken well. तो सर बिफोर आई गो अहेड विद द ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स, एक दो कुछ चीजें हैं बहुत जल्दी जल्दी मैं कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये है सर कि अक्सर जो एम जो हमारे इस पूरे कोर्स का एम ये है कि हम फोक ट्रेडिशंस के बारे में, या उसको किस तरह से समझा जाए, उसकी डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमने हर आयाम को कोशिश की, और इसमें खासकर हमारे प्रिंसिपल सर प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार जी का ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, और ये कोशिश उनकी हमेशा से रही है कि हम इस आयाम को एक अलग तौर से, और इसके हर पहलू को हम कोशिश करेंगे आप तक, हमारे जितने भी सहभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उन तक आए। और उसी कोशिश का एक हिस्सा ये आज था कि कोई ये सोच सकता है कि अगर हम इंडियन फोक ट्रेडिशंस में, भारतीय लोक परंपरा में संवैधानिक संरक्षण की बात करेंगे, तो वो चर्चा इतनी लंबी चल सकती है और समय कम पड़ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ, और ऐसे कई आयाम आपके आने से, आपके बोलने से, आपके हम लोगों को सुझाव देने से, आपके अपने जो प्रोफेशनल नॉलेज है, इतनी पुरानी और इतनी 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 ट्रेजर्ड नॉलेज जो आपने हमसे शेयर की, उससे हमारे जहनों में सवाल उठे। और मेरा मानना ये है कि, और हम सब पढ़े लिखे लोगों का ये मानना है कि सवाल उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सवाल नहीं उठेगा हम उसके जवाब नहीं खोजेंगे। और इसी सोच के साथ और इसी खूबसूरत अंदाज के साथ आज का ये सेशन मैं कंक्लूड करना चाहूंगी। और उससे पहले officially I want to convey my thanks to श्री चंद्रभूषण पांडे जी, जो आए हमारे साथ, अपनी इतनी अच्छी जो नॉलेज है उन्होंने हमारे साथ शेयर की, अपने व्यूज शेयर किए। और उसके साथ साथ I want to convey my thanks on behalf of all the participants who are here, जितने भी हमारे participants हैं उनका इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है, और डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट स्पीकर्स रहे हैं, डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ फोक ट्रेडिशन सामने आए, लेकिन उसमें उनकी इतनी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है, उसके लिए उन सभी पार्टिसिपेंट्स का थैंक्स। उसके साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक आत्माराम सनातन धर्म IQAC इंचार्ज प्रोफेसर विनीता तुली, एंड ऑल्सो द एंटायर टीम। और सर, वी कैनॉट फॉरगेट आवर एंटायर टेक्निकल टीम that is so strong. It's like the iron cage of our entire team. Amit Shrivastava ji, Ravinder Pant ji, Shivamani ji, and all Manvendra ji, और हमारी सारी टीम, on behalf of Atmaram Sanatan Dharm College and the IQAC and the entire team of the Refresher Course Committee, I would like to convey my thanks to Shri Chandrabhushan Pandey ji for being here and enlightening us on this Thank you very much. wonderful topic. Thank you Thank you so so much, much. sir. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. Sure. We are so lucky to have you, नमस्कार sir. And keep your good work going on, sir. You inspire many people. जो आपने बात कही ना कि अब हमने तो अपना काम किया, अब आप, मुझे लगता है कि वो है ना कि मेरा तो पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, और हम कोशिश करेंगे कि आपके भी इस पैगाम को हम लोग आगे बढ़ाएं सर. नमस्कार. थैंक यू. Okay.